Hello and welcome. This is the first lecture of magnetic field. So in this lecture we will study about the magnetic forces on the charged particles and on the current elements. After that we will study the magnetic field due to the current elements, that is the magnetic effect of current. So let us start. The first topic we are going to do is the detection of magnetic field. How it was observed that there is certain magnetic field present at somewhere. ठीक है, इसके लिए क्या किया गया कि this was a conductor, this was a conducting wire carrying certain current. Okay, ठीक है. So let us say I current was carrying by this wire and यहाँ पे a charge was kept of magnitude q. This is suppose plus q. Okay, तो ये हमारा वायर है, कंडक्टिंग वायर है. लेट मी राइट इट एज कंडक्टिंग वायर कैरिंग सर्टेन करेंट, दैट इज आई. ओके, अब यहाँ पे साइड में रखा गया एक चार्ज को. नाउ इट वाज ऑब्जर्व देयर वाजंट एनी फोर्स experienced by this charge, experienced by this charge. ठीक है, कब तक? टिल इट वॉज स्टैटिक. ठीक है, जब तक ये चार्ज रेस्ट में थी इस पर किसी भी तरह की फोर्स नहीं लग रही थी, या तो जो फोर्स था वो इतना ज़्यादा था दैट इट वॉज टेंडिंग टू ज़ीरो. ठीक है, तो इससे हमने कंक्लूड किया कि देयर इजंट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड present in these regions and due to no presence of electric field there isn't any force that is QE in on this charge. अगर इस करंट के वजह से ये कंडक्टिंग वायर हमारा, दिस इज द करंट, इसके वजह से अगर सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होता इन दिस रीजन, सो इस चार्ज पे QE फोर्स लग सकता था, बट इट वॉज ऑब्जर्व देयर इज नो एनी फोर्स ऑन दिस चार्ज टिल इट वॉज स्टैटिक. नाउ इसके बाद क्या किया गया, हमारा वायर वही है, करेंट इज सेम एंड चार्ज इज सेम, दैट इज क्यू. नाउ चार्ज वॉज गिवन सर्टेन वेलोसिटी दैट इज वी. वी वेलोसिटी चार्ज को दी गई तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि दिस वुड बी द पाथ. ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड पाथ, दिस इज एक्सपेक्टेड path, but it was observed that the path become like this. ठीक है, पाथ इस तरह से बन गई जबकि हमने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया था, बट पाथ ऑफ द चार्ज बिकेम लाइक दिस. ठीक है, सिमिलरली इसी वायर के पास में द करेंट वॉज आई एंड इफ द चार्ज वॉज गिवन अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में जो चार्ज का है पाथ बिकेम लाइक दिस. तो यहाँ पर हमने देखा कि जब चार्ज हमारी स्टैटिक थी देयर वॉजंट एनी फोर्स, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, वॉजंट एनी फोर्स व्हेन इट वाज स्टैटिक, बट व्हेन इट वाज गिवन अ वेलोसिटी v in this direction then the path became like this. When the velocity v was given in this direction then the path became like this. तो यहाँ से we can say that when the charge is having certain velocity then it experiences certain force due to which the path of particle gets changed. ठीक है, लेकिन यहाँ जब स्टैटिक था हमारा चार्ज तब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग पा रही थी. तब यहाँ पे कहा गया कि ड्यू टू दिस करेंट going through this wire a magnetic field is created in these region and due to this magnetic field a magnetic force acts on this charge when it moves, but while it was static then also यहाँ पे एक magnetic field तो था ही इस करंट के वजह से. अगर आप लोगों ने 12th और 10th में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा कि इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. ठीक है, बट जब ये स्टैटिक थी तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, बट वाइल इट वॉज मूविंग देयर वॉज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एंड इट वॉजंट इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी
but when the charge was moving there was a force acting on this charge and it wasn't electric, because अगर ये electric होता it must act here also, but here no force is acting, so we can say the force acting here is the magnetic force, because it only acts while the charge is in motion. When the charge is static there is no any force, hence electric force is not present. तो यहाँ से हमारा conclusion निकलता है कि electric force is either absent or negligible. बट यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकला कि जो while it was moving, while the charge in motion of force acting on the charge, okay, and this is magnetic force. Magnetic force. Now magnetic force है तो there must be some magnetic field, and if magnetic field is present there must be some source of that magnetic field, and this is the source, that is the current, and this is called magnetic effect of current. So if there is magnetic force there must be some magnetic field. Magnetic field, and this magnetic field is due to what? Due to current in wire. जो हमारा वायर में करंट है, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड एंड द होल इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किस तरह से ऑब्जर्व किया गया, किस तरह से इसके बारे में चीज़ें सोची गई. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जानेंगे जिसकी कि हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है. तो मैग्नेटिक फील्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, एंड दिस इज बी वेक्टर. सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. तो हम लोग आगे जब भी यूज़ करेंगे तो वी विल टेक द मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, एंड हम लोग इसको बार बार मैग्नेटिक फील्ड भी कहा करेंगे. सो बी को हम लोग आगे के डिस्कशन में मैग्नेटिक फील्ड भी कहेंगे. ठीक है, एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेन एवर वी विल यूज़ द बी क्वांटिटी, दैट वी विल यूज़ इट कंसिडरिंग इट एज वेक्टर क्वांटिटी. अगर हमें कहीं ऐड करना है तो वी विल ऐड एज पर द वेक्टर रूल ऑफ एडिशन. ठीक है, सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि आगे के डिस्कशन में वी विल टेक दिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एज जेड एक्सिस. ठीक है, नाउ दिस साइन एंड दिस साइन, ये दो साइंस हैं. दिस विल प्ले important role in this chapter. So this sign is representing a direction inside the plane, inside the plane. क्यों? क्योंकि अगर प्लेन के अंदर, अगर आप सपोज करो कि कोई एरो को आप प्लेन के अंदर भेजोगे तो एरो कुछ इस तरह की होती है, नहीं, एरो कुछ इस तरह की होती है. इफ सम एरो इज गोइंग इनसाइड द प्लेन यू विल सी दिस पार्ट. ओके, तो ये कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नाउ इफ सम एरो इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन यू विल सी द टिप ऑफ द एरो, एंड सो दिस इज मेड फॉर शोइंग द डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन. अगर प्लेन से इमर्ज हो रही है, पर दोनों ही प्लेन के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन है, बट दिस इज इनसाइड द प्लेन एंड दिस इज आउटसाइड द प्लेन. या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि दिस इज डाउन द प्लेन, दिस इज अप द प्लेन, जैसे भी आपको समझना हो. इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है. तो ये चीज़ें मैंने बताई आपको. दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय बी इज वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ भी हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करेंगे वी विल डू इट एज द रूल्स ऑफ वेक्टर.
ठीक है। एंड समटाइम वी विल कॉल इट एज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ज़्यादातर टाइम में मैग्नेटिक फील्ड ही कहा जाता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड एट बी एंड यूनिट इज, हम लोग यूनिट आगे भी डिस्कस करेंगे, बट लेट मी टेल यू यूनिट इज टेस्ला, ठीक है, इन एसआई यूनिट। अगर सीजीएस की बात करेंगे तो इसकी यूनिट होती है गॉस, एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। सो इसको रिमेंबर कर, याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी गॉस में दे देता है और क्वेश्चन बनाने होते हैं हमें टेस्ला में। सिंस टेस्ला इज एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व करना अ बिट ईजियर होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी हो सकता है आप सीजीएस में भी ज़्यादा अच्छा सॉल्व कर पाएँ, सो दैट इज़ अप टू यू। नाउ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऊपर के डिस्कशन को आपने सही से समझा है तो एक डिफरेंस यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि ये चार्ज स्टैटिक है, ठीक है, बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती तो इस पर एक फोर्स लगता। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम स्टैटिक चार्ज, और अगर चार्ज मूव कर रही है देन ऑल्सो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंटरैक्ट विथ स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्ज, बट द मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली इंटरैक्ट विथ द मूविंग चार्ज, इट वॉन्ट इंटरैक्ट विथ स्टैटिक चार्ज। अगर कहीं पे चार्ज स्टैटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कितना भी हो देयर वॉन्ट बी एनी फोर्स, बट इफ electric field is present and charge is also present, either it is moving or it is static, but an electric force will act on the charge equal to Q multiplied by E। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस करने जा रहे हैं, तो यहाँ दो चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो पहली चीज़, यहाँ मैंने सारे डायग्राम्स बना के रखे हैं, आई विल जस्ट शो यू द डिफरेंसेस। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। हमने एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, दिस इज अ रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। नाउ दिस चार्ज इज पॉजिटिव, दिस चार्ज विल एंटर इनटू दिस रीजन, अ फोर्स एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। तो कंसिक्वेंटली जो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था दिस पाथ वुड बी लाइक दिस, लेकिन पाथ ऐसा नहीं रहेगा, द पाथ विल बिकम लाइक दिस ड्यू टू दिस फोर्स। तो ये हमने देखा जो डिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स अगर यहाँ हम लोग बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव वाई एक्सिस में हुआ है डिफ्लेक्शन। ना हम लोगों ने क्या किया, वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ए एंड दिस इज बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम ए टू बी। तो इस फोर्स पे, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा व्हेन इट विल एंटर इनटू दिस रीजन, द फोर्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स वुड बी इक्वल टू क्यू इंटू ई एंड इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि दिस चार्ज विल फॉलो दिस पाथ, बट ऐसा नहीं होगा, अ फोर्स विल एक्ट and the charge will take a path like this, चार्ज का पाथ बन जाएगा ऐसा। और यहाँ पे भी हमने देखा कि अगर डेल्टा की बात करें तो डेल्टा क्या हमारा पॉजिटिव है, दैट इज डिफ्लेक्शन इज इन सेम डायरेक्शन, दैट इज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी भी डायरेक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराएं, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, जो फोर्स एक्ट होगी, दैट वुड बी इन द सेम डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम इन बोथ द केसेस, इन दिस केस एंड इन दिस केस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम। अब सेम काम हम लोग करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है। सो दिस इज अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डाउन द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। यहाँ देखो आप क्रॉस का निशान है, मैंने ऊपर भी बात की कि अगर क्रॉस है दैट मीन्स इफ दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, सो दिस डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है।
नाउ अब हमने एक बार चार्ज को इस साइड से प्रोजेक्ट करा एंड नेक्स्ट टाइम वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चार्ज एंड नाउ वी विल सी कि चार्ज किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी सीधी पाथ ये होनी चाहिए थी, बट ये नहीं होता है। द पार्टिकल विल टेक द पाथ लाइक दिस। ठीक है, पार्टिकल विल टेक द पाथ लाइक दिस। सो हेयर डिफ्लेक्शन इज व्हाट, अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन इज इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगा, इन पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने रिवर्स करा ना, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ चार्ज होगा वो होगा लाइक दिस एंड हेयर डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज नेगेटिव। दैट मीन्स फोर्स विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज इन द नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि पाथ को रिवर्स करने से फोर्स के डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट यहाँ हमने देखा कि पाथ को रिवर्स करने से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट्स रिवर्स्ड। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। तो एक डिफरेंस हमने ऊपर देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंटरेक्ट विथ स्टैटिक एज वेल एज मूविंग चार्ज, बट द मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरेक्ट विथ ओनली मूविंग चार्ज। दूसरा डिफरेंस हमने देखा कि जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दैट डिपेंड्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो दीज आर द डिफरेंस। तो इसको मैं यहाँ पे इस टेबल में समराइज कर देता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट interacts with static as well as moving charge, जबकि मैग्नेटिक फील्ड विल interact with only moving charge। जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, the direction of electric force is dependent on the direction of electric field only, जबकि यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंडेंट on the direction of magnetic field as well as the direction of velocity of charge। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट हमने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, दोनों के बीच में हमने डिफरेंस जाना, एक हमने मैकेनिज्म देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना अ बिट इजियर देन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपोनेंट्स कम हैं। तो दोनों के बीच में हमने एक कॉन्ट्रास्ट लगा के चीज़ें जानने की कोशिश की। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर अप टू हेयर। नेक्स्ट इज आर मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स इज बेसिकली व्हाट, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, नेक्स्ट वी विल स्टडी मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट। दैट मीन्स अगर Q चार्ज है और सपोज इस रीजन में B मैग्नेटिक फील्ड है, देन हाउ मच मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन दिस Q चार्ज, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफ़ देयर इज़ वन करेंट एलिमेंट कैरिंग करंट I एंड द लेंथ ऑफ एलिमेंट इज L एंड इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज
B, then what force will act on this current carrying element, we will study about that. So दो चीज़ें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है. So in the next chapter or in the next lecture we will study about the magnetic forces and we will find the path of the charged particle while it moves through the magnetic field, ठीक है. So thank you and stay connected.